My name is Dr. Hassan Siddiq, and I am representing the Strategic Planning and Implementation Unit of the Environment Protection Department of the Government of Punjab. Or does anybody of you know what is basically a single-use plastic? Anybody of you know? What is a single-use plastic? Everybody must know what is plastic. You know, we find plastic everywhere. This mic is made up of plastic. Our mobile phones are made up of plastic. Our cars are made up of plastic. Do you know what is basically a single-use plastic? Yes. One at a time. One at a time. Yes. For example, right. And why it is harmful? Yes? Yes, very good. So I'm glad that you already know many things, but right. आज आपको इसकी जो हार्मफुल इम्पैक्ट स्पेशली इसके सेहत पर और जो माहौल पर असरात है, डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हैं, इनके बारे में आपको बताऊंगा, कुछ फैक्ट्स शेयर करूंगा ताकि आप आज से जब भी सिंगल यूज प्लास्टिक को यूज करने लगे या कोई आपको कहे तो आप उसको अवॉइड कर सकें। So do you know that approximately 11,000 plastic establishments in Pakistan and 65% of them are clustered in only Punjab province. Our province, and 15 to 17 million tons here solid waste is generated in Punjab, out of which 1.22 million tons is a plastic waste. तो जब हम सिंगल यूज करते हैं और उसको सिर्फ हम एक दफा इस्तेमाल करेंगे तो हम फेंक देंगे, इट्स क्वाइट नेचुरल. As I told you earlier, when we use our mobile phones, our cars, or any other such equipment which can be used multiple times, उसका use तो उसका waste generation बहुत कम होगी. But when we drink water or use single-use plastic cutlery, on an average, every Pakistan only uses single-use plastics in tens of kilograms. Do you know that? वो बहुत ज़्यादा उसका वेस्ट जनरेट बहुत ज़्यादा होता है. You can see that 15 to 17 million tons of plastic waste is generated annually. Well, micro and microplastics threat to human health and life on land and water. आगे मैं आपको बताता हूँ how it is impacting us. We know that आपने बहुत सी documentaries देखी होंगी, videos देखी होंगी, even you might also have watched some cartoons as well. जिसपे मैरीन लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है, बिकॉज व्हेन वी थ्रो आउट प्लास्टिक दे गो टू द वाटर स्ट्रीम एंड देन अल्टीमेटली इट लीड्स टू योर रिवर्स एंड ओशंस, और वहाँ पर जो मैरीन लाइफ है वो डिकम्पोज नहीं होता, तो जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट उन पर आ रहा है इट्स क्वाइट एस्टोनिशिंग. So this is basically a cycle of plastic. First of all, manufacturing of plastic pellets from crude oil. Let me inform you that oil होता है जो we use in our car as well. उससे small plastic pellets बनते हैं, ठीक है. Then it is manufactured और फिर वो उससे plastic products बनती हैं, और all the products we use of plastic वो उस छोटे pellets से बनती हैं. Then it is consumed, then it is end of its life, then it ends up in the landfill. Landfills वो जगह होती हैं जहाँ हमारा सारा वेस्ट अल्टीमेटली जाके स्टोर होता है या वहाँ पे जाता है और वहाँ से आगे हमारे वेस्ट जनरेट होता है. Then it can be recycled as well. So I will tell you also what is recycling and how it is important. तो लेट मी टेल यू कि इसकी जो हमारी मैरीन लाइफ है, जो समंदर में रहने वाले जानवर हैं, उनके लिए किस कदर ये इश्यूज क्रिएट कर रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल पैथोजेनिक वेक्टर्स.
Floating plastics can carry life-threatening bacteria and transport pharmaceuticals into coastal areas. Plastic debris can transport non-indigenous species to new locations where they could become invasive. जब प्लास्टिक वेस्ट होगा तो नेचुरली जो मैरीन लाइफ है, बहुत सी फिश हैं, टर्टल्स वगैरह हैं, वो वहां से मूव करेंगे. When they move, तो वहां पे उनकी लाइफ जो होगी, क्योंकि वो they are living there for thousands of years. जब वो वहां से मूव करेंगे तो नेचुरली उनकी वो जगह वो इनहेबिटेड नहीं होगी, तो वहां पे उनकी जो थ्रेट्स हैं वो बहुत बढ़ जाएंगे. उनकी जो स्पीशी है इट कैन बी इंडेंजर्ड एज वेल. is found in oceans. ये एल्गी असल में एक हाइब्रिड फॉर्म होती है and it is very important for our ecosystem. Then it can lead to some toxic effects as well. The plastic, as I said, it is made up from small pellets, and when it goes into marine life or other places, it then breaks down into small particles. जो छोटे-छोटे particles होते हैं वो बड़े toxic होते हैं. आपकी health के लिए they are very very detrimental. Then they are ecosystem. इससे मैंने कहा we are not against the plastics because we are benefiting from it a lot. इजाज़त ले रहे हैं. किसी तरह नहीं फॉरवर्ड होगी, पता नहीं क्या मतलब. Unfortunately, this has become a very familiar sight as the world is getting engulfed in plastic waste. Hey friends, I'm sure you guys must be wondering, what is such a big deal about it? Well, you won't believe, but plastic pollution has become the effect on us, and what we can do to deal with it. Zoom in! So, what is plastic pollution? Plastic pollution is the accumulation of sustainable
and dangerous for our planet as a whole. Now comes the most crucial question. What can we do to help our planet and innocent animals? Well, believe me or not, but the solution for this begins with you and only you. First, start to recycle the plastic that you can and never leave it in places such as beaches and gardens. I had Sophia Kadir Khan to come on stage and say a few words. Assalamu alaikum everyone. How are you, my little angels? I'm good, thank you so much. Jazakallah. आपको पता है ना हम आज यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं? आप लोग में से मुझे बच्चे बताएंगे, can you tell me कि आपने इससे क्या सीखा है? Yes. Don't waste. We should reduce the use of plastic. Yes. Say no to plastic. Yes. G, yes, you. We should use decomposable stuff. Oh, stuff. Okay. We should recycle. Yes. Paper instead of plastic. Yes. Never throw things away when they're still useful. Okay, never throw things away when still you can use them. All right, and there are so many other hands raised. Okay, one last, girl. Okay, from this side now. Yes. We can reuse things. Acha. Now you know what you're supposed to do. You're supposed to make a list of the things which you can reuse. At your home, in your school, okay? They are talking about the shopping bags. ये जो shopping bags वगैरह हम लेते हैं, प्लास्टिक के, आपको ये पता है? वैसे भी अब थोड़ा सा ट्रेंड में भी ये आ रहा है कि हम कपड़े के बैग्स यूज करना शुरू करें, है ना? That can be one of the reasons. We always talk about animal shelters. We always talk about कि हम animals बेचारे उनको injury ना हो, they should not be wounded. And we should take care of them. A prophet, peace be upon him, also said it, that we should take care of animals also along with the human beings. But जब आपको ये नहीं पता that when you throw some plastic stuff into the water or when you leave it as a trash in the ground and it is finally go to the water, either to river, lake, stream and then finally to the ocean. तो आपको ये पता है कि वो जानवर हैं जो कि समंदर में होते हैं, वो उससे मर रहे होते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने जानवर को जख्मी तो नहीं होने देना चाहते, मगर हम तो उनको मार रहे हैं. अब आप ये देखिए कि यहाँ पे कितनी प्यारी इन्होंने चीज दिखाई है कि if you will stop using plastic more and more and if you will reduce the use of plastic, minimize the use of, हम ये नहीं कह सकते कि प्लास्टिक का यूज हो ही नहीं, ये पॉसिबल नहीं है. हम जो बात कर रहे हैं वो एक पॉसिबल बात है जो कि हो सकती है. आई कैन सी अभी यहाँ पर मुझे बच्चियां नजर आ रही हैं जिनके हाथ में वाटर बॉटल्स हैं, मगर वो प्लास्टिक की नहीं है, वो रीयूजेबल है. हमारे कैंटीन से जो प्लास्टिक की बॉटल्स मिलती हैं उनको क्या हम रीयूज करते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं? We just throw them away. Should we do that? No. इसी तरह की और बहुत सारी चीजें बेटा आप लोगों ने सोचनी है और आपने लिस्ट डाउन करनी है कि आप क्या क्या कर सकते हो. सिंगल यूज प्लास्टिक का आपको पता चला क्या मतलब होता है? है ना? That ghost there, whoever उसका नाम मैंने मिस कर दिया, whoever was this ghost who was telling the story, उसने आपको बताया है सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है, कि ऐसा प्लास्टिक जिसको आप एक दफा यूज करो और फेंक. आपके शॉपिंग बैग्स, कैन यू डू वन थिंग, आप लोग घर जाएं और अपनी मामा से अपने बाबा से बोलें कि
कि प्लीज ये प्लास्टिक के शॉपर बैग्स हमने नहीं इस्तेमाल करने। हमें कौन से चाहिए? क्लॉथ बैग्स। हमें कौन से चाहिए? उससे क्या होगा? एनवायरमेंट बेहतर होगी और ट्रैश भी कम होगा। इसी तरह, और वो बार बार यूज होंगे, उनको वॉश करके फिर से यूज करेंगे। पेपर बैग्स होते थे हमारे बचपन में, पेपर बैग यूज होते थे। आपको पेपर बैग जो वन टाइम यूज के लिए जो आपने यूज करना है, उसके लिए पेपर बैग होने चाहिए। और अभी ये कुछ और एक्टिविटीज वगैरह भी आपसे डिस्कस करेंगे। तो मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम दैट यू केम ओवर, और आप लोगों का ये इसमें जो इंटरेस्ट है आपने लिया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। और मेरा ख्याल है कि दिस इज द बेस्ट वे दैट यू गो टू द स्कूल एंड टॉक टू द चिल्ड्रन, बिकॉज इट्स द चिल्ड्रन हु कैन एक्चुअली मेक अ डिफरेंस। इनकी हम इस तरह की तरबियत करेंगे तो तभी अगली नस्लें जाकर उससे फायदा उठाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर, आपका बहुत शुक्रिया। और ये मेरा ये ख्याल है कि मैं आपको अपनी बच्चियों के बिहाफ पे ये कह सकती हूँ कि इंशाल्लाह दे आर गोइंग टू फुली पार्टिसिपेट इन व्हाटएवर एक्टिविटी यू विल सजेस्ट, है ना गर्ल्स? और ये सिर्फ यहाँ तक नहीं रहेंगी, इंशाल्लाह दे विल विन द प्राइजेस आल्सो। Are you ready? Oh, that was the kind of yes I wanted to hear. तो बात ये है कि हमने सिर्फ प्राइज विन करने के लिए ये नहीं करना। हम किस लिए कर रहे हैं? ताकि हम कंट्रीब्यूट करें और हमें ये आदत पड़े कि हमने प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को नो कहना है। ठीक है? तो ये आपके घर से भी शुरू होगा, ये स्कूल से भी शुरू होगा। ओके? तो एक दूसरे को समझाना है। क्या हम ये कर सकते हैं? और क्या हम ये बगैर लड़े कर सकते हैं? बस दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। बहुत अच्छा आप लोगों का सेशन बड़ा अच्छा था, और आई एम श्योर कि इसके बाद माय चिल्ड्रन विल हैव सो मेनी क्वेश्चंस आल्सो। ये हर किसी से बड़े क्वेश्चन करती हैं बच्चियां, तो आपके ज़हन में जो भी क्वेश्चन आता है बेटा आपको इनसे पूछना है। ठीक है? और इंशाल्लाह हम क्रेसेंट को मैं ये तो नहीं कह सकती कि प्लास्टिक फ्री स्कूल बनाएंगे, लेकिन हम प्रेजेंट में मिनिमम करेंगे प्लास्टिक का यूज। कैन वी प्रॉमिस दैट? मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। आर यू रेडी? I know my girls are always ready for anything positive. Thank you so very much. Wonderful. इतनी लंबी I want to say that our discussion was very great. So, is plastic really harmful for our environment? So, the cleanliness authority, why do not take a strict action to this? Very good question. Very good question, and I will answer to that. Do you know that plastic is made up in industry or factories? और पाकिस्तान में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, उनमें thousands of workers काम करते हैं। सेकेंडली जो हमारे रिटेल स्टोर्स हैं, वहाँ पर पाकिस्तान में, पंजाब में thousands of stores हैं, उनकी जॉब्स उनके साथ हैं। तो हम एक स्ट्रेटजी लेके आए पंजाब में इन 2023, जिस पे हम विद द पैसेज ऑफ टाइम अवेयरनेस करेंगे जो आज हम कर रहे हैं, और ये जो फैक्ट्रीज हैं इनसे बात करेंगे कि आपने जब प्लास्टिक बनाना है दैट इट शुड बी रिसाइक्लेबल, और जो प्लास्टिक हार्मफुल है, जो रिसाइकल नहीं हो सकता, उसको नहीं करना। अगर हम एकदम उसको बंद कर दें और स्ट्रिक्ट एक्शन ले जाएं तो जो थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स हैं और इंडस्ट्री है बिल्कुल बंद हो जाएगी। सो हम रेगुलेशंस भी लेके आए हैं, इनको हम वी आर आल्सो गोइंग टू गेट देम बैंड एज वेल। इनको हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बैन भी कर देंगे, बट इट विल टेक टाइम एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम वी विल बी एबल टू डू के हम आहिस्ता। और आप लोगों का, और आप लोग जब शॉप पे जाएंगे ना और कहेंगे हमें प्लास्टिक बैग नहीं फैब्रिक बैग चाहिए, तो वो प्लास्टिक जो फैक्ट्री वाला होगा ना वो खुद ही कहेगा अच्छा अब तो बच्चे भी कहना मुझे शुरू हो गए हैं, तो मैं इसका ऑल्टरनेट बनाता हूँ, मैं वो वाला नहीं देता। तो कस्टमर की डिमांड कम होगी तो नेचुरली जो फैक्ट्री ओनर्स हैं वो भी सोचेंगे। तो हमने
उनका जो रोजगार है जो इनकम है वो बंद नहीं करनी। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह आप लोगों के जो एटीट्यूड होगा, आपका बिहेवियर होगा, उसके साथ साथ विद योर हेल्प वी विल बी इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिनिश इट। थैंक यू। Well, it's a very technical question you have asked. हमने जो एक regulations बनाई है ना बेटा, उसमें जो shopping bags हैं for example, उसमें हमने किया है कि वो 75 microns is you can understand कि वो एक प्लास्टिक की क्वालिटी है। 75 माइक्रोन से कम हमने बैन कर दिए हैं पंजाब में। आपने देखा होगा जो ब्लैक शॉपर्स होते थे पहले प्लास्टिक के, वो हमें नजर नहीं आते, वो पहले से बैंड है। तो 75 माइक्रोन से जो ऊपर का शॉपर होगा वो इट कैन बी रिसाइकल्ड। और मैं यहाँ पे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को एक एडवाइस करूंगा कि आप फ्यूचर आप ये कर सकते हैं कि आप एटलीस्ट जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको सेग्रीगेट कर लें और उसको किसी रिसाइकलिंग कंपनी को दे दें एंड इट कैन बी सोल्ड एज वेल। यू नो दैट वो बेचा भी जा सकता है। अगर यहाँ आप किसी एनजीओ को डोनेट कर दें, अगर वो आप उसको सेग्रीगेट कर देंगे प्लास्टिक को, अब स्कूल में भी अगर आप डस्टबिन दो बना दें, प्लास्टिक वेस्ट की और एक दूसरे वेस्ट की, तो उसको रिसाइकिल करना, फिर रिसाइकिल प्लांट पे भेजना बहुत इजी हो जाएगा। Yes, the environment was much better. हमारी जो मेरी लाइफ है वो बहुत बेहतर थी, उसको इस तरह कोई इश्यूज नहीं थे। You can ask your grandparents that how they used to live when there was no plastic and how what was the condition of our atmosphere when plastic was not there. So you can ask your grandfather. I hope that grandparents के जो days होंगे उससे plastic यूज नहीं होता। Yeah. Well, जो प्लास्टिक का मटेरियल है इसको मोल्ड करना, इससे चीजें बनाना इट्स वेरी इजी एंड वेरी चीपर। और आपको पता है कि कभी किसी ने प्लास्टिक शॉप पर आपसे कभी किसी ने पैसे नहीं दिए होंगे, कभी किसी का शॉप पे नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत चीप है। तो इसलिए लोगों ने कहा कि हमारे लिए कन्वीनियंस है और इसकी चीजें बनाना आसान है, तो इसकी वजह से प्लास्टिक की जो प्रोडक्शन की यूज का बहुत ज्यादा होगा। यस you didn't listen to my last answer, I think. Yes. You are saying that we should use paper bags, but paper bags are also harmful for trees. Well, I have, for example, I myself did not say paper bags. It can be a better alternate, but the best thing is the fabric bag. What I think. Well, there are many figures, but there are definitely figures we can quote. There are hundreds of thousands, because you know that in marine life is huge. उसमें बहुत hundreds of thousands होते हैं ऐसे। और सिर्फ marine में बाकी जो को पता है लाहौर में भी ऐसा I remember एक प्लास्टिक शॉपर खा के लाहौर जू का जो जिराफ है उसकी डेथ हो गई। तो there are hundreds and thousands of animals. Yes. Yes, depleting other resources. That's a very good question. Beta, उसमें all other materials are normally they are reusable. So plastic, for example, your fabric bag, you can use it 1,000 times. और उसकी जगह प्लास्टिक का बैग आपको 1000 शॉपिंग बैग यूज करने होंगे। तो सोर्सेज नेचुरली कम इस्तेमाल होंगे, क्योंकि स्टील जो है, if you have a steel bottle, you can use it for 4 years, 5 years.
But if you have a plastic bottle, you use plastic bottle, you will use, I think, 500 plastic bottles in 5 years. तो उससे यूज ही बहुत कम जब होगा तो रिसोर्स कैसे बदलेंगे? Small announcement from our side, and we will also give you cash prizes and certificates for it as well. ठीक है, उसके लिए जो फॉर्मल ग्राफिक है और मटेरियल है वो हम तुमसे आपसे शेयर कर देंगे. थैंक यू वेरी मच. बात देता है डिकम्पोज होने. प्लास्टिक के बर्तनों में खाना गर्म करने या खाने से जो इससे खारिज होने वाले फ्यूम्स होते हैं और उसके अंदर जहरीले जरात होते हैं वो खुराक में शामिल होकर डिफरेंट बीमारियों का बायस भी बनते हैं. गली मोहल्लों में बिखरे हुए शॉपिंग बैग माहौल को बदनुमा बनाते हैं. छोटी छोटी सी चंद तब्दीलियां हम अगर अपनी जिंदगी में लेके आते हैं तो हम अपना भी तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं और अपने माहौल का भी. प्लास्टिक बैग के बजाय कपड़े के बैग का इस्तेमाल करें. ऑफिस और दौरान सफर अपना मग या अपना कोई ग्लास जो है साथ लेके ट्रैवल करें. लकड़ी से बनी हुई कॉटन बड्स और कटलरी का इस्तेमाल करें. डिस्पोजेबल के बजाय ऐसी चीजों को इस्तेमाल करें जो बार बार रीयूजेबल हो, जैसे कि लंच बॉक्स या स्टील की बोतल. साफ सुथरा माहौल हमारे लिए कुदरत का एक बहुत ही अनमोल तोहफा है और इसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज. सिंगल यूज प्लास्टिक से इनकार, आने वाली नस्लों और माहौल से प्यार. महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल, हुकूमत पंजाब. ठीक है सर.